الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ وہ پہلا مددگار، پہلا صحابی یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ پہلا مددگار، پہلا صحابی، نبی نے جسے ہر قدم پر دعا دی، وہ افضل بشر بعد از انبیاء ہے، وہ جانے صداقت، وہ جانے وفا ہے، فرشتے اسی کی اداؤں پہ عاشق، اسی کی نماز و دعاؤں پہ عاشق، نبیوں سے کم تر، اماموں سے اعلیٰ، محمد سے ہر دم وفا کرنے والا، کہ صدیق اکبر جس کا لقب ہے، وہ پہلا خلیفہ، وہ پہلا عرب ہے، بشر کی صداقت کا معیار ٹھہرا، صداقت کا اونچا وہ مینار ٹھہرا، چٹانوں سے مضبوط جس کا قدم تھا، وہ چلتا ہوا ایک باب حرم تھا، وہ سارے کا سارا تھا قرآن جیسا، خدا کے تھا ایک فرمان جیسا، خدا اس پر راضی ہوا وہ خدا پر، کہا قدسی آمین جس کی دعا پر، رسالت کے قدموں پر رکھ دے وہ لا کر، چلے گھر کا گھر اپنے سر پر اٹھا کر، رسالت کے قدموں پہ رکھ دے وہ لا کر، چلے گھر کا گھر اپنے سر پر اٹھا کر۔ یعنی جس وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تبوک کے موقع پر لوگوں سے کہا تھا کہ لوگ اللہ کی راہ میں مال لائیں، چنانچہ اس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اپنے آدھا گھر کا سامان اللہ کے راہ کے لیے لائے اور آدھا سامان آپ نے اپنے گھر کے لیے چھوڑ دیا، سوچ رہے تھے کہ آج میں ابو بکر سے آگے نکل جاؤں گا۔ اتنے میں ہی وہ عاشق رسول، وہ عاشق جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی تشریف لے آئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ ایک گٹھرا حضرت کے ساتھ ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت صدیق اکبر سے پوچھا، اے ابو بکر
آپ اپنے گھر کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ حضرت ابو بکر صدیق، وہ عاشق رسول جو طائف میں بھی آپ کے ساتھ تھا، جو غار سور کے اندر بھی آپ کے ساتھ تھا، کہ جس نے سب سے پہلے قرآن کا نام مصحف رکھا، جو سب سے پہلے بڑوں کے اندر مردوں میں ایمان لے آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس پر بھی میں نے اسلام کو پیش کیا سب نے کچھ سوچ بچار کی، حتیٰ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے جب میں نے اسلام کو پیش کیا تو حضرت علی فرماتے ہیں یا رسول اللہ میں اپنے گھر جا کر مشورہ کر کے پھر آپ کو بتاؤں گا۔ اور حضرت عمر کی کیا پوچھتے ہو، وہ تو مرنے مارنے پر تل گئے تھے، لیکن حضرت ابو بکر صدیق وہ ہستی ہیں، وہ شخصیت ہیں کہ جنہوں نے بلا سوچ سمجھے بغیر تذبذب کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر اسلام کو قبول کر لیا تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لے آئے تھے۔ تو اتنے میں ہی یہ عاشق رسول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پوچھتے ہیں اے ابو بکر آپ ذرا یہ بتلائیں آپ اپنے گھر کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیتے ہیں یا رسول اللہ ابقیت لہم اللہ ورسولہ، میں اپنے گھر اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر آیا ہوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر اپنی جان نچھاور کرنے کے لیے تیار رہتے تھے، حتیٰ کہ روایت کے اندر آتا ہے کہ آپ نے اپنے گھر کی دیوار کے اندر اپنا ہاتھ مارا کہ کہیں کوئی سوئی اٹکی ہوئی نہ ہو، وہ سوئی گھر نہ رہ جائے، اس لیے آپ نے اپنی دیوار کے اندر ایک اپنا ہاتھ مارا تھا۔ حتیٰ کہ آپ نے جو کپڑا پہن رکھا تھا، جو لباس پہن رکھا تھا، اس لباس کو اتارا، ٹاٹ کا لباس پہن لیا، اس لباس کو گٹھلی کے اندر کر لیا۔ اتنے میں ہی حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ٹاٹ کے لباس میں دیکھتے ہیں اور پوچھتے ہیں اے جبرائیل خیریت تو ہیں؟ آپ نے آج ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا ہے۔ حضرت جبرائیل کہتے ہیں یا رسول اللہ آج ابو بکر کے اس عمل سے اللہ اتنے خوش ہیں کہ اللہ نے آسمانوں پر اعلان کر دیا اے میرے فرشتوں آج تم بھی ابو بکر جیسا لباس پہن لو۔ اور اللہ رب العزت نے ابو بکر کو سلام کہا ہے اور کہا ہے ابو بکر سے پوچھو کہ ابو بکر مجھ سے اس حال میں خوش ہے۔ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کو سنتے ہیں آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ میں آپ سے ہر حال میں خوش ہوں۔ رسالت کے قدموں میں رکھ دے وہ لا کر چلے گھر کا گھر اپنے سر پر اٹھا کر، بجز انبیاء سب سے بہتر وہی ہے، وہی صرف صدیق اکبر وہی ہے، وہی امتی اس سے بہتر نہیں ہے، کوئی امتی اس کا ہمسر نہیں ہے، کوئی اس کو صدیق مانے نہ مانے، دیے ہیں مگر اس کو رتبے خدا نے۔ معزز حاضرین، اللہ رب العزت کا بڑا فضل احسان، اس کا شکر، اس کی مہربانی کہ اللہ رب العزت نے ہمیں مسلمانوں کے گھروں کے اندر پیدا فرمایا، ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کے اس ایمان کی آخری سانس تک حفاظت فرمائے۔ آج چونکہ اس مہینے کے اندر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہوئی تھی، لہذا آج آپ کے سامنے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل ذکر کیے جائیں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل 181 احادیث وہ ہیں کہ جن میں صرف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل ہیں۔ 181 احادیث کے اندر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فضیلتوں کو بیان فرمایا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہت محبت کیا کرتے تھے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کیا کرتے تھے۔ چنانچہ کفار کعبے کی صحن کے اندر جمع تھے، آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ دیکھو اس محمد نے نعوذ باللہ کس قدر ہمارے بتوں کی توہین کی ہے، کس قدر ہمارے
बाप दादा के दीन को झुटलाता है। ये बातें आपस में कर ही रहे थे कि इतने में ही उस मजमे के अंदर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम पहुंच जाते हैं। चुनांचे रिवायत के अंदर आता है कुफ्फार ने आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की गर्दन मुबारक के अंदर चादर को डाला, किसी ने आपको इधर खींचा, किसी ने आपको इधर खींचा। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बहुत अजियत पहुंचाई, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बहुत तकलीफ पहुंचाई। ये हादसे की इत्तला हजरत अबू बकर सिद्दीक को पहुंचती है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप फौरन दौड़े दौड़े उस मजमे के अंदर चीर कर घुस जाते हैं और कहते हैं अतक़्तुलून रजुला अन यक़ूल रब्बी अल्लाह, क्या तुम ऐसे आदमी को मारते हो जो तुमसे कहता है मेरा रब अल्लाह है, जो तुम्हें सिरात मुस्तकीम की दावत देता है, जो तुम्हें सीधे रास्ते की दावत देता है। बस इतना सुनना था कि कुफ्फार ने आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को छोड़ा, अबू बकर को मारना शुरू कर दिया। रिवायत के अंदर आता है अबू बकर को बहुत मारा, इतना मारा कि हजरत अबू बकर बेहोश हो गए, बहुत देर तक होश नहीं आया। रात गुजर गई। अगले दिन जब होश में आए अम्मा से पूछते हैं अम्मा जान सबसे पहले आप ये बताइए मेरे महबूब के हाल चाल कैसे हैं, मेरे महबूब की तबीयत कैसी है, मेरे महबूब के हाल कैसे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे पहले हालत को पूछा। अम्मा जान कहती हैं बेटा आपने कुछ नहीं खाया है, आप कुछ खा लीजिए। अम्मा मैं उस वक्त तक नहीं खा सकता जब तक आका की मुझे तबीयत के बारे में ना पता चले। अम्मा मैं उस वक्त तक नहीं खा सकूंगा। बेटा मुझे कैसे पता चलेगा अल्लाह के नबी की तबीयत कैसी है। अम्मा जान मैं आपको फुला सहाबिया का नाम बताता हूँ, आप उनके पास पहुंच जाइए, वो आपको अल्लाह के नबी की तबीयत को बतला देंगी। चुनांचे आपकी वालिदा उन सहाबिया के पास पहुंचती हैं। वो सहाबिया कहती हैं आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम दार अरकम के अंदर मौजूद है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ियारत के लिए, आपकी तबीयत पूछने के लिए, आपके हालचाल पूछने के लिए हजरत अबू बकर सिद्दीक आप अपनी वालिदा के साथ जाते हैं। वो अबू बकर कि जो बेहोश हो गया था, आपकी खातिर जो बेहोश हो गया था, होश आने के बाद सबसे पहले हाल चाल पूछे थे, आका के हाल चाल पूछे थे, आका की तबीयत पूछी थी। कोई खाना भी नहीं खाया था, कुछ चीज चखी भी नहीं थी। आप अपनी वालिदा के साथ दार अरकम के अंदर पहुंचते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू बकर की इस हालत को देखते हैं। आका खड़े होते हैं, अबू बकर का बोसा लेते हैं। सहाबा खड़े होते हैं, अबू बकर का बोसा लेते हैं। सुभान अल्लाह, क्या फजीलत है अबू बकर की। अल्लाह ने क्या मकाम दिया है अबू बकर को, क्या मर्तबा दिया है कि आका खड़े होते हैं और आका ने अपने होठों से, अपने लबों से हजरत अबू बकर का बोसा लिया। सहाबा किराम ने हजरत अबू बकर का बोसा लिया। यह हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मकाम था, यह आपका मर्तबा था। हत्ता के जब आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हिजरत का हुक्म मिला तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर के दरवाजे पर खड़े हुए थे। बस अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हल्की सी आहट से हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फौरन बाहर आ गए। या रसूल अल्लाह आप बाहर खड़े हुए हैं, अबू बकर आप इस वक्त जा रहे हैं। या रसूल अल्लाह मेरे दिल ने चाहा था और मुझे ख्याल था कि आपको हिजरत का हुक्म दिया जाएगा, तो उसी वक्त से अबू बकर ने रात को सोना छोड़ दिया कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे आका मेरे घर पर आए और मेरे आका को मेरे घर के दरवाजे पर मेरा इंतजार करना पड़े। इसलिए या रसूल अल्लाह मैंने आराम को छोड़ दिया था। चुनांचे उसके बाद आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम सामान लेकर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी आपके साथ हिजरत के लिए चल देते हैं। और ये नहीं कि सिर्फ अकेले जा रहे हैं, बल्कि काम सुपुर्द कर दिया। अब्दुल रहमान आप एक काम करना, कुफ्फार जो बातें करें रात को गारे सोर के अंदर हम तक बता देना। बेटी अस्मा आप खाना हम तक पहुंचाती रहना। आप एक काम करना, आप घर के अंदर खाना बनाना, अपनी अहलिया से कह रहे हैं आप घर के अंदर खाना बनाना। अब्दुल रहमान आपका काम ये है कि जो कुफ्फार बातें करें वो बातें हम तक रात में पहुंचा देनी गारे सोर के अंदर। बेटी अस्मा आपको खाना हम तक पहुंचाना है। और गुलाम से कह दिया आप बकरियों के चराने के बहाने हमको दूध पिलाते रहना। चुनांचे सब घर वालों को कामों पर सुपुर्द कर दिया, कामों की जिम्मेदारी दे दी और खुद आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ तशरीफ ले गई। चुनांचे जब गारे सौर के अंदर पहुंचते हैं
तो गारे सूर के दहाने पर मकड़ियों ने जाला बुन दिया था, कबूतरी ने अंडे दे दिए थे। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु गारे सूर के अंदर दाखिल होते हैं। आपकी बेटी हजरत अस्मा बिनते अबी बकर रजी अल्लाह तआला अन्हा, जिनको काम दिया गया था, खाने की जिनको जिम्मेदारी दी गई थी कि आपका काम है हम तो खाना पहुंचाते रहना, चुनांचे आप पहले दिन आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए अपने अब्बा जान हजरत अबू बकर सिद्दीक के लिए अपने घर से खाना ले गई। दूसरे दिन क्या होता है, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपकी पेशानी पर, आपकी माथे पर कुछ जख्म से देखते हैं। आपकी हालत मगमूम सी थी, यूं लग रहा था जैसा आप टेंशन के अंदर थे, ऐसा लग रहा था जैसे आप बहुत बड़ी फिक्रमंद हो। आपके माथे पर जख्म लगा हुआ था। अल्लाह के नबी पूछते हैं, ए बेटी अस्मा, आप जरा ये बतलाएं आपकी पेशानी पर किस चीज का जख्म है। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेटी अस्मा से पूछा है, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम सामने हैं, अबू बकर आपके सामने हैं, आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। अल्लाह के नबी पूछते हैं, बेटी अस्मा बता बात क्या है। या रसूल अल्लाह, कि कल मैं जो आपके लिए खाना देकर आई थी, मैं जब घर पहुंची थी, रास्ते के अंदर अबू जहल मिल गया। वो कहने लगा, ए अबू बकर की बेटी, तुझको मालूम होगा तेरे अब्बू कहाँ हैं, तुझको मालूम होगा कि तुम्हारे पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफा कहाँ हैं। मैंने कहा, हाँ मुझको मालूम है मेरे अब्बू कहाँ हैं, मेरे नबी कहाँ हैं, लेकिन मुझे मालूम तो है, लेकिन मैं तुझको नहीं बता सकती। अबू जहल ने कहा, अस्मा अगर तूने मुझको नहीं बताया, तुझको मैं खूब सजा दूंगा, सख्त सजा दूंगा, तुझे मारूंगा। मैंने कहा, ए अबू जहल, मेरी जान तो तेरे हवाले है, लेकिन मैं अपने नबी को तेरे हवाले नहीं कर सकती। उस बेटी अस्मा जो मासूम सी बच्ची थी, ज्यादा उम्र भी नहीं थी, थोड़ी सी उम्र थी, लेकिन आपकी इस्तिकामत को देखें, आपकी बहादुरी को देखें कि अबू जहल दुश्मन सामने है, आपके एक कान पर आपके रहपट मारता है और आप थप्पड़ जैसी आपके लगता है, वो मासूम सी बच्ची, वो छोटी सी बच्ची फौरन गिर जाती है, हत्ता कि आपकी पेशानी पत्थर पर लगती है और आपके पेशानी से खून निकलने लगता है। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ये बात जिक्र कर रही थी। हजरत अस्मा बिनते अबी बकर रजी अल्लाह तआला अन्हा की इस्तिकामत, आपकी बहादुरी कि आपने थप्पड़ खा लिया, लेकिन अपने आका का हजरत अबू बकर का पता नहीं दिया। खैर, हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने पूरे गार के अंदर नजर दौड़ाई, हत्ता कि जो सुराख थे कपड़े से उन सुराखों को बंद कर दिया, एक सुराख बाकी था। इस तरह बैठे कि उस सुराख पर अपना पांव मुबारक आपने रख दिया। महबूब का सर आपकी गोद के अंदर है और यूं लग रहा था कि जैसा कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपना सर रहल के अंदर रख लिया हो। कितना अच्छा और कितना लुत्फ आ रहा होगा, कितना मजा आ रहा होगा, कितनी लज्जत हजरत अबू बकर सिद्दीक को महसूस हो रही होगी कि आका का सर आपकी गोद के अंदर है, आका का दीदार हो रहा है। एक सुराख बाकी था, उस सुराख के अंदर आपने अपना पांव मुबारक रख लिया था। उस सुराख के अंदर एक जहरीला सांप था, जिस जहरीले सांप ने आपके पांव मुबारक पर काटा, लेकिन आका का सर आपकी गोद के अंदर था, इसलिए आपने अपनी जबान से कुछ हरकत ना की। आप हिले तक भी नहीं कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे हिलने की वजह से, हालांकि तकलीफ बहुत हो रही थी, आपके जिस्म के अंदर जहर बहुत तेजी के साथ दौड़ रहा था, लेकिन गोद के अंदर आका का सर था। ये कैसे अबू बकर हिम्मत कर सकता था कि आका का सर मेरी गोद के अंदर हो, मैं उस हूं, मेरी जबान से कुछ निकले, मेरा जिस्म हरकत में आए, ऐसा नहीं हो सकता था। लेकिन जब आपकी आंखों में से आंसू आए और वो आंसू जमीन पर नहीं गिरा, वो आंसू कितना मुकद्दस था, वो आंसू कितना बाबरकत वाला था, वो आंसू कितना पाकीज़ा था कि जो आंसू जमीन पर नहीं गिरा था, बल्कि आका के रुखसार मुबारक पर, आका के गाल मुबारक पर गिरा था। जब आका के गाल मुबारक पर वो आंसू गिरा, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आपकी आंखें खुल जाती हैं। अबू बकर आप क्यों रो रही हैं? हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु जवाब देते हैं, या रसूल अल्लाह, इस सुराख के अंदर जिसमें मैंने पांव लगा रखा है, इस सुराख के अंदर एक जहरीला सांप है और उस जहरीले सांप ने मेरे काट लिया है और मुझे बहुत तकलीफ, बहुत शिद्दत के साथ तकलीफ हो रही है। या रसूल अल्लाह, उस जहरीले सांप की वजह से ये मैं रो रहा हूं। चुनांचे आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपना लुआब मुबारक लिया, अपना थूक मुबारक लिया और अबू बकर की पांव पर यूं लगा दिया। वो मुबारक कदम और लुआब मुबारक, कितना बाबरकत लुआब, वो लुआब
وہ लुआब कितना बाबरकत लुआब है कि 14 आदमियों के खाने में जब वो लुआब डलता है तो वो खाना 1400 आदमियों के लिए काफी हो जाता है। जब वो लुआब हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की आंखों के अंदर लगता है तो हजरत अली की आंखें ठीक हो जाती हैं। यानी जिस दिन खैबर को फतह करना था, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया आज वो शख्स जाएगा जो जिसके हाथ पर यकीनन खैबर फतह होगा। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु आप खड़े हो जाएं, या रसूल अल्लाह मेरी आंखें दुख रही हैं, मेरी आंखों में दर्द है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपना लुआब मुबारक लिया और हजरत अली की आंखों पर यूं लगा दिया। वो कैसा लुआब, बाबरकत लुआब था कि हजरत अली की आंखें ठीक हो गईं। वो लुआब कितना बाबरकत लुआब था कि हजरत अबू सुफियान की जो आंखें निकल गई थी, आपने अपने लुआब मुबारक से उस आंख को ठीक कर दिया। या आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का लुआब मुबारक इतना तासीर वाला, आपके बाल इतने तासीर वाले, आपका पसीना इतना तासीर वाला कि सहाबा किराम बतौर बरकत के आपका पसीने को, आपके लुआब को, आपके बालों को, हत्ता कि आपके नाखून ये जो कटे होते हैं उनको भी बरकत के तौर पर रखा करते थे। तो खैर हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु की गोद के अंदर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सर रखा हुआ है और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपना लुआब मुबारक अबू बकर के पैर पर जैसे ही लगाया है हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु की वो बेचैनी, वो परेशानी बिल्कुल ठीक हो गई। और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक मर्तबा कहा था, लोगों मैंने सबके एहसानात के बदले चुका दिए हैं, सिर्फ अबू बकर के एहसान का बदला मैंने नहीं चुकाया, इसका बदला अल्लाह रब्बुल इज्जत क़यामत के दिन देंगे।